Hello dear 7th graders, welcome to your English grammar class. So before we start today's work, let's take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from other. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's read chapter number 1. Today we will study kinds of sentence according to structure. So structure के according sentences कितनी तरह के होते हैं. According to structure, sentences can be classified into 3 types. So structure के according sentences 3 types के होते हैं. First is simple sentences. A simple sentence has a subject and a verb and conveys complete sense. सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्रेजेंट हो और जिसका कोई कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग निकले. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी. हियर आई इज सब्जेक्ट, एम इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एम हैप्पी. दिस इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. शी इज लर्निंग टू स्विम. नाउ शी इज सब्जेक्ट, learning is verb, and to swim, she is learning to swim, is making a complete sense. Father bought a new car. Father is subject, bought is verb, father bought a new car. This is making complete sense. A simple sentence has only one independent clause. So simple sentence में independent clause अगर present होगा तो only one होगा. Okay. Now being tired, he went to bed. He is subject, went is form of verb, and being tired क्या है? Independent clause. Being tired, you cannot use it as it is, right? Because it does not convey any meaning on its own. Being tired का अपना कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है? Being tired अगर इसके साथ होगा he went to bed, तभी इसका कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं तो being tired अपने आप में कोई मीनिंग नहीं बना रहा. So this is a dependent clause, but he went to bed is a independent clause क्योंकि इसका अपना मीनिंग बन रहा है, ठीक है? So now this complete sentence is making a complete sense. So this is a simple sentence. Now second is compound sentences. Compound sentences. To identify a compound sentence, we have to follow 2 rules. There are 2 rules to identify a compound sentence. First rule is a compound sentence has 2 or more independent clauses. So compound sentence में 2 independent clauses present होंगे. So ठीक है? Is it clear? This is the first rule to identify a compound sentence. The independent clauses are joined by a coordinating conjunction. Now those independent clauses will be joined by a coordinating conjunction. This is the second rule that we have to follow to identify a compound sentence. So you can remember the 7 coordinating conjunctions as fanboys. So there are 7 coordinating conjunctions, and to use those conjunctions or to remember those conjunctions, you can follow this simple rule, that is fanboys. So fanboys, where F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for what, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so. So fanboys में F for के लिए है, A and के लिए यूज़ किया है हमने, N nor के लिए, B but के लिए, O or के लिए, Y yet के लिए, and S so के लिए, ठीक है? So these are 7 coordinating conjunctions: for, and, nor, but, or, yet, and so. ठीक है? These are 7 coordinating conjunctions, and these 7 coordinating conjunctions will be used in the compound sentences. इन compound sentences में ये 7 coordinating conjunctions use होती हैं.
Okay, so these are two rules. First is that there will be two independent clauses. Second is one of the coordinating conjunction will be present in a compound sentence. For example, I like tea but she likes coffee. I like tea but she likes coffee. Here but is a coordinating conjunction. सो इन 7 में से कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में प्रेजेंट होगी. अगर इन 7 में से कोई भी एक वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है. सेकेंड इज शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट ऑफ टू स्लीप. She was tired, so she went off to sleep. Now, so is a coordinating conjunction. अगर यहाँ पे so लगा हुआ है तो मतलब ये coordinating conjunction है. अगर coordinating conjunction है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये compound sentence है. She went to the station and bought tickets for the trip. She went to the station and bought tickets for the trip. Now, and यहाँ पे लगा हुआ है और and भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. सो मतलब अगर यहाँ पे एंड प्रेजेंट है तो मतलब ये भी एक कौन सा हो गया कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, ये था सेकंड रूल के अकॉर्डिंग. बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल देयर विल बी 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. मतलब जो क्लॉजेस इसमें प्रेजेंट हैं इस कंजंक्शन के साइड्स में, ये हो गया क्लॉज 1 और ये हो गया क्लॉज 2. ये जो 2 क्लॉजेस प्रेजेंट है ये कौन से होने चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. मतलब इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए. अगर हम एक को सेपरेटली यूज़ करना चाहें तो कर पाएँ. जैसे आई लाइक टी, आप यूज़ कर सकते हो इसको अलग से, है ना, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग निकल रहा है. इट इज़ मेकिंग सम सेंस ऑन इट्स ओन. आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी. बट को रिमूव करके शी लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स कॉफ़ी, इसका भी अपना कोई मीनिंग बन रहा है ना. दिस इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन. सो दिस इज़ वाई यहाँ पे जो दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्रेजेंट है मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है. सेकेंड इज शी वॉज टायर्ड. ये हो गया क्लॉज 1, शी वॉज टायर्ड. नाउ ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है ना, आप यूज़ कर सकते हो शी वॉज टायर्ड. और यहाँ पे क्या है? शी वेंट ऑफ टू स्लीप. शी वेंट ऑफ टू स्लीप, ये हो गया क्लॉज 2. और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. अगर कोई थकी हुई हो, है ना, तो बाद में वो सोने चली जाए तो आप बोल सकते हो शी वेंट ऑफ टू स्लीप. ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है. लेट्स चेक द थर्ड वन. शी वेंट टू द स्टेशन. ये हो गया क्लॉज 1, शी वेंट टू द स्टेशन, वो स्टेशन गई. अब इसका अपना मीनिंग बन रहा है. इट इज़ मेकिंग सम सेंस ऑन इट्स ओन. नाउ इसको आप यूज़ कर सकते हो बॉट टिकट्स फॉर द ट्रिप. मतलब शी था तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? शी बॉट टिकट फॉर द ट्रिप. इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे सब्जेक्ट आपको खुद से ऐड करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन क्लॉज 1. ठीक है, क्लॉज 1 में जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट हमने क्लॉज 2 में भी यहाँ पे लगा दिया. ऐसा आप कर सकते हो. सो शी बॉट टिकट्स फॉर द ट्रिप, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है ना. शी बॉट सम टिकट्स फॉर द ट्रिप, उसने टिकट्स बाय की ट्रिप के लिए. इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस. सो दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. नाउ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका भी हम मीनिंग एक बार फिर से चेक करेंगे. व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट और द डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, वो सेंटेंस का पार्ट जो डिपेंडेंट हो दूसरे पार्ट पे, डिपेंडेंट ऑन दी अदर पार्ट. तो जैसे क्लॉज 1 और क्लॉज 2 होता है, तो क्लॉज 1 और 2 में से कोई भी एक पार्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड करे तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, मारिया हैड लेफ्ट बिफोर आई कुड रीच जीशा's हाउस. मारिया हैड लेफ्ट बिफोर आई कुड रीच जीशा's हाउस. मारिया जा चुकी थी इससे पहले कि मैं जीशा के हाउस में पहुंची. ठीक है, सो मारिया हैड लेफ्ट, ये तो इंडिपेंडेंट पार्ट हो गया. मारिया हैड लेफ्ट, मारिया जा चुकी थी, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है. ठीक है, आई कुड रीच जीशा's हाउस, दिस इज़ नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, है ना. इसका कोई अपने आप से ये आप यूज़ नहीं कर सकते ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में. सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट पार्ट. जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट पार्ट आपस में ज्वाइन होंगे तो वो क्या होंगे? डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन एंड कन्वे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, सो जो एक पार्ट का सेंटेंस होगा जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाए,
ठीक है। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों जब अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाए तो उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, शी केम टू माई हाउस एंड वेंट ऑफ टू शॉप। शी केम टू माई हाउस, ये अपने आप में कंप्लीट है, सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड वेंट ऑफ टू शॉप, यहाँ पे फिर से वही आ गया, वेंट ऑफ टू शॉप, सो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग था, सो वी विल ऐड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, दैट इज शी वेंट ऑफ टू द शॉप, कि वो शॉप में गई। सो ये अपने आप में अब कंप्लीट हो गया। सो ये भी कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका भी अपना एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। सो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस. So what is a complex sentence? So we have to follow 2 rules to identify a complex sentence. First rule is a complex sentence has 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses. Complex sentence में क्या होगा, एक independent clause होगा और एक independent clause के अलावा उसमें dependent clauses भी होंगे। मतलब एक independent और एक dependent clause आपस में join होंगे। Second rule is the 2 clauses are joined by a subordinating conjunction such as if, who, as, although, when, because, that, until, though and while. सेकेंड जो रूल है वो क्या है कि उसमें एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी होगी। सो को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर 7, देयर आर 7 को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हमने याद कर ली, फैन बॉयज, है ना। सो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके अलावा जितनी भी कंजंक्शंस बची वो ऑलमोस्ट वो सारी सब ऑर्डिनेटिंग होगी, नॉट सारी की सारी नहीं होंगी, ऑलमोस्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल इफ, हु, एज, आल्दो, व्हेन, बिकॉज, दैट, अंटिल, दो एंड व्हाइल, ये सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट आउट फॉर अ वॉक आल्दो इट वॉज रेनिंग। सो शी वेंट आउट फॉर अ वॉक, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट पार्ट, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा और इसका अपना भी एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। आल्दो इट वॉज रेनिंग, आल्दो इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे आल्दो लग गया, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हुई है। सो इसी वजह से ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैरी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी हैड टू कैच अ फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिकॉज, बिकॉज क्या है, अब एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बट बिफोर आई रीच द स्टेशन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सो यहाँ पे बिफोर क्या है, बिफोर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। सो इसी वजह से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, I advise you to go thoroughly through these 3 kinds of sentences and write these on your fear notebook, okay, and don't forget to complete your work. So all the best.